Hello, guys. So how I hope you all are doing good and practicing for your exam, studying otherwise also. सब तो करना पड़ेगा ही, ठीक है? So now today we are going to start with CBSE board grade 9 polynomials. I think this is the second chapter. Polynomials जो हम लोग सीखने वाले हैं अभी, and this chapter is very interesting. Honestly speaking, this chapter is useful for us. I mean, हमेशा जब तक आप मैथ सीखते रहोगे, ये चैप्टर आपको काम ही आएगा. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ग्रेड 9. पहले भी है इसके बारे में, ऐसे नहीं कि अभी अभी सीख रहे. वी लर्न अबाउट दिस चैप्टर राइट फ्रॉम आवर ग्रेड 7. So what all do we have in this chapter? This chapter is polynomials. Polynomials. Okay, one second. Polynomials, or what are polynomials? पहले तो वो देख लेते हैं कि what are polynomials. Let's understand first what are polynomials. Polynomials is basically it is an algebraic expression. Okay, उसमें terms होते हैं. एंड लाइक हम लोग ने बहुत बार देखा है कि वी सी सम्स लाइक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल, करेक्ट? ये सारे पॉलिनोमियल है. तो बेसिकली बिफोर इवन वी गो अहेड टू काइंड ऑफ जंपिंग ऑन टू द लेसन डायरेक्टली, पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. तो ये लेसन में नंबर 1 वी विल सी व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे क्या है, ठीक है. देन सेकेंडली वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स. सो भाई कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म वैसे, करेक्ट? सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. फिर पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स. ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स काफी लंबा हो गया ना ये, नेवर माइंड. ओके, then degree of polynomial. We will see what is the meaning of the word degree of polynomial. फिर तीसरा देखेंगे हम लोग value of polynomial, different points. So we will say value of a polynomial at value at different points, correct? अलग अलग पॉइंट पे कैसे वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, कैसे चेंज होती है या उसको क्या करना है, दैट इज व्हाट वी विल सी. देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड एज अ zeros of a polynomial. This is called as a zeros of a polynomial. Okay. Then ये चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये चैप्टर में हम लोग अलग अलग टाइप के आइडेंटिटीज सीखेंगे. वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज वी कम अक्रॉस दिस चैप्टर. एक एक करके करेंगे. ओके, एंड देन वी विल सी देयर इज समथिंग कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. ओके, दैट आल्सो this is a remainder theorem. Or this chapter has something called a factor theorem. And this chapter identity is already involved, correct? बहुत सारे multiple identities हैं, वो कैसे use करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 topics in this chapter. Obviously है easy से लेके आखिर जाते तक it becomes a little difficult. Order of this thing changes. So easy से लेके difficult तक ये chapter ऐसे ऐसे proceed होते हैं, correct? Now let's see what we have in the next coming up. तो उसको कैसे उसको we'll understand what are polynomials and how do we go about it, correct? तो these equations, ये जो equations that I'm going to write on the board, these are not the first time that no, ये चीज ऐसी नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं उसको. ओके, एक polynomial जो होता है ना, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स इट मीन्स मेनी. पॉली का मतलब होता है मेनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स. पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो दैट काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल और एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस which has many number of terms, correct? So we can say an algebraic expression
an algebraic expression in which there are terms तो होते ही है, but in which you have variables. किससे बनते हैं वो terms? वो बनते हैं variables से, वो बनते हैं constants से, and वो बनते हैं exponents से. Correct? These terms, they are made of variable, constants and exponents. Correct? Acha. These are algebraic expressions in which you have components, variables, constants. Okay? And ये सारे जब एक साथ आके they form a kind of algebraic formation. जैसे for example we will write down, suppose we have 3x to the power 4 plus 2x cube plus maybe 3x square minus 4x minus 2. ये सारा, this is exactly an algebraic expression. करेक्ट. तो अगर आप अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देखो तो इसमें एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के या फिर एक पॉलिनोमियल के, सो टू से, करेक्ट, एक पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स करेंगे हम? वी विल मेक 3 पार्ट्स. करेक्ट. एक पार्ट तो है कांस्टेंट. कांस्टेंट जैसे कि हम बोलेंगे 3 या -2 या फिर 3/5, ये सारे कांस्टेंट. करेक्ट. फिर दूसरा second part will be variable. Variable, so I think all of you by now understand what a variable. Correct? Variable is like x, y, वैसे. Then the next part we have is the power. Power. What is power? Power like like 2, 3, वैसे. So okay, power में only whole numbers are allowed. Whole numbers. I hope all of you remember what are whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब allowed है सिर्फ. इसका मतलब allowed क्या नहीं है? तो डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारा allowed नहीं है पावर में. ओके, इन द पावर दैट इज नॉट allowed. करेक्ट. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. ओके, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर वंस वी विल आल्सो राइट डाउन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. पावर में क्या क्या अलाउड नहीं या फिर व्हाट इज नॉट अलाउड, और कैसे उसको हम लोग अलग से लिखेंगे. ठीक है, 1 सेकेंड. ओके, देखो, अ पॉलिनोमियल, ये सारा इंक्लूड है. ये जो अभी ब्लैक में लिखा है वो इंक्लूडेड है. सो अभी जो वॉट एवर आई एम राइटिंग इन द ब्लू, अ पॉलिनोमियल विल नॉट इंक्लूड और विल नॉट हैव, क्या नहीं है उसको? नेगेटिव पावर नहीं होगा. व्हाट इट इज? नेगेटिव पावर विल नॉट बी देयर और नॉट अलाउड. नेगेटिव पावर. ओके, या फिर फ्रैक्शन पावर. करेक्ट. फ्रैक्शन पावर. देन इनफाइनाइट नंबर्स, इंफिनिटी, ये सब नहीं अलाउड है. दिस इज, इफ दीज आर देयर देन जो भी इक्वेशन ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक इट, जैसे कि दीज आर नॉट अलाउड. नॉट अलाउड मतलब अगर ये सब है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इफ आई से 3x⁻³ प्लस 4x² माइनस 3x+2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी जो डिग्री, एक उसका जो पावर है दैट इज माइनस पावर. करेक्ट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल. करेक्ट. तो आई एम गोइंग टू राइट सम टर्म्स ऑन द बोर्ड और हम देखेंगे कि सॉरी, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द what उसमें which are out of these, which are polynomial, which are the polynomials and which are not the polynomials. Correct. So let us say we have 8x, then let us say we have x-4, or let us say we have 2x² minus
3x raised to -2 plus 9, या फिर we can have 3xyz plus 8xy square z minus 0.1xy minus 200x, 200y plus 0.5, या फिर 2 plus 1 by x. तो let us see. I am going to keep on writing this. और आप लोग लिखो बाद में, ये सारा लिखने के बाद I will be writing the answers. You can check if your answers are right or wrong. Correct? तो 6th क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 9 by x plus y plus z. फिर then 7th क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर which is like 10. फिर then so 8th question we can take root of x minus 3. 9th let us take say root of 2, or we can say x square. 10th question will be say x square minus 9 by 2y plus 12. So which of these, you can pause the video थोड़ी देर के लिए and then you can figure out which of these are going to be are the polynomials. आपको ये ढूंढना है और मुझे बोलना है कि इसमें से polynomial कौन से है. करेक्ट? तो टेक सम टाइम एंड टेल मी क्या ये polynomial है नहीं है. हाउ यू विल टेल मी. ठीक है, तो लेट अस फिगर आउट. क्लियर? आई एम गोइंग टू काउंट 1. कितना टाइम लगना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? 10 क्वेश्चंस है तो फटाफट टिक मार के क्रॉस ही करना है आपको, तो है ना. तो इट शुडंट टेक मच टाइम आइडियली. करेक्ट? तो लेट्स सी. तो ये तो पॉलिनोमियल है. करेक्ट? दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज अ पॉलिनोमियल. कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए डेसिमल को देखकर? ठीक है, डेसिमल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर देखना है. पावर हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए. ये और कोएफिशिएंट्स कैन बी अ डेसिमल. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. दिस इज अ पॉलिनोमियल. यहाँ पे एक्चुअली एक्स या कोई भी वेरिएबल है वो दिखता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी पावर 0 है. एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर है लेकिन दिखता नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर x root x, I hope you all know this, that root x is also equal, is said, we can say it is x to the power half. तो root x is half. तो ये polynomial नहीं हुआ. ये polynomial है क्योंकि यहाँ पर x है. देखो root x जो है ना वो कोएफिशिएंट है, उसके साथ x to the power 0 is there. तो this is a polynomial and this is also a polynomial. Correct? कितने बच्चों का करेक्ट आया? Clap for them. ओके, चलो. सो लेट्स गो फर्दर. So these are the polynomials, और इसे हम लोग ऐसे क्लासिफाई करना एक बार. once you identify which are the polynomials and which are not the polynomials, so it becomes easy for us to solve the questions further. चलो, so basically अभी तक जो हमने थोड़ा बहुत एक 5% अभी जो भी देखा है हमने, so we can say that equations of the type, कौन से टाइप के इक्वेशन है? इक्वेशंस ऑफ द टाइप से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना. this is a polynomial. Correct? of this type are called polynomials. Correct? इतना तो हमने अभी देखा है. they are called as polynomials. ठीक है? okay, here okay, देखो in this equation ये जो है ना दिस ये सारे क्या है? इनका एक नाम है. इन्हें क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज टर्म्स. करेक्ट? तो एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर, 4x, 10, ये सारे क्या है? दीज आर टर्म्स. तो टर्म्स अगर लिखनी, ये पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या आएंगे? एक तो फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म इज 3x स्क्वायर, फिर एक टर्म है 4x, और देन वी हैव 10. करेक्ट?
These are the terms of this polynomial, correct? So basically, if you see very properly, a polynomial has x variables. So कैसे मैंने हमने पहले भी देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें देखो वेरिएबल भी है, यू हैव वेरिएबल, ये x वेरिएबल है ना, ओके ये जो है कोएफिशिएंट 4, तो वी हैव नंबर्स आल्सो एंड पावर भी है, करेक्ट? सो this kind of combination is always, this is called as a polynomial, करेक्ट? अच्छा, क्लासिफिकेशन ये थोड़ा बाइफर्केशन करते हैं, तो इसी से आई विल टेक दिस सेम थिंग, ओके वी हैव एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 10। अगर यही इक्वेशन हमने लिया तो ये जो x है दिस इज आवर वेरिएबल, -3 ये पूरा का पूरा, ये -3 यहाँ पर या 4 यहाँ पर, these are called as the coefficients। और ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं पावर, करेक्ट? यहाँ पे हमें एक याद रखना है, एवरी टाइम द नंबर गोज विद द साइन। अगर आपके पास एक नंबर है, सपोज एक यह है कि 2x² माइनस 3x माइनस 4, तो हमेशा जो आपका कोएफिशिएंट जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3 है, हमेशा कोएफिशिएंट उसके साइन के साथ जाएगा। आप सिर्फ 3, you cannot write only 3, the coefficient goes with the sign, correct? So in this particular lesson in grade 9 में we are only going to learn polynomial with one variable, correct? Polynomial with one variable, polynomial with one variable क्या होता है? We will go to the next page। आपको ये introduction I am giving, as we go ahead and solve the questions you will understand what I am trying to say, and then but ये introduction है, I am just trying to help you all to understand the concept of the, you know, how certain terminologies are there in the lesson, correct? Okay, so let us see that it is a polynomial in one variable, correct? Polynomial, ये lesson में हमको polynomial in one variable ही है, polynomial in one variable। So let's see, जैसे के x² plus 2x plus 3, this is a polynomial in one variable, correct? So दूसरा वेरिएबल नहीं है, x ही है, करेक्ट? सो ये कैसे है, इसे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, करेक्ट? तो पॉलिनोमियल, ये 1 सेकंड, तो दिस हैज ओनली वन वेरिएबल, करेक्ट? सो वन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? x, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, वन वेरिएबल विच इज इक्वल टू x, ओके? तो बट x, सी दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये सिर्फ लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल है, बट द मोमेंट वी राइट x² प्लस 2x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है इक्वेशन, करेक्ट? अगर आप उसको, ओके ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पे द मोमेंट वी ऐड अ 0 देयर इट बिकम्स लाइक अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल देन दिस बिकम्स एन इक्वेशन, करेक्ट? सो ओके, अभी if I write down, I mean, we sometimes we also call a polynomial or an equation. Sometimes we just kind of equate it and then find out the value of x. यहाँ पे हम लोग factorization करेंगे. We'll see how to go about it. ठीक है? Now, if I have x² plus 2y plus 3, तो यहाँ पे clear this is a polynomial in two variable. Correct? So now you guys have to tell me here. आपको मुझे बताना है कि if I write down say y raised to 4 minus 10, is this a polynomial? है कि नहीं polynomial, बताओ तो। या फिर if I take an example, say let's take 5x raised to minus 2 plus 1, ये polynomial है क्या, बताओ? Tell me। फिर then if I write down 3x raised to half plus 2, is this a polynomial?
आई थिंक बाय नाउ तो सब लोग होशियार हो ही गए होंगे ना। आई थिंक यू नाउ मस्ट नो कि भाई पॉलिनोमियल कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। सो करेक्ट। तो बाय नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इफ आई राइट 3, तो 3 क्या है? नॉर्मली तो वी से दैट 3 इज अ कांस्टेंट, बट कांस्टेंट ये पॉलिनोमियल में ही आता है। क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पे x है। कहां पर है? x टू द पावर 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज वाई ये 3 और वापस सेम नंबर पे आके जाता है, जो हमको लगता है वो कांस्टेंट है। करेक्ट। बेसिकली दैट इज वाई वी से दैट अ कांस्टेंट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होते हैं? Constant are all numbers like 2, 3, 100, minus 9889, सारे के सारे these are called constants. Correct? तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से let us start, let us do one question here. Okay? कि if I write down now, हमने तो 2-3 बार अभी किया है, but if I write down के 4x square minus 3x plus 7, क्या is this a polynomial in one variable? आपको बताना है कि, या फिर क्वेश्चन को भी थोड़ा रिफ्रेम करते हैं। ओके, सो वेदर राइट डाउन, आपको लिखना है कि राइट डाउन इफ दिस इज ए polynomial in one variable and justify your answer. ठीक है? Justify your answer मतलब you have to give a reason for your answer. Justify your answer. Okay. So suppose we have a question, say 4x square minus 3x minus 7. So what will you say? Is this a polynomial in one variable or two variable? Obviously, this is a polynomial in one variable. Correct? This is a polynomial in one variable. अच्छा, उन्होंने कहा है justify your answer, तो आंसर तो justify करना पड़ेगा. So what are they saying? पहले तो आपको justify करना पड़ेगा कि ये polynomial है. सिर्फ one variable वाला आंसर justify नहीं करना है. Correct? आपको justify करना है कि this is what? This is a polynomial भी justify करना है. It is in one variable, that also we have to justify. Correct? तो पहले तो ये polynomial है, तो हाँ ये polynomial है. Why? It is a polynomial because it is, ये तमाम रीजन जो पॉलिनोमियल के वो हमको लिख देने फिर यहाँ पर. इट इज अ पॉलिनोमियल because what? Because it has a, first of all it has what? Here power of equation is 2. Correct? Power is equal to positive 2. Correct? तो power is positive 2. Right? वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है. वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इज इक्वल टू x, विच इज ओनली वन वेरिएबल. तो यहाँ पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि ओनली वन वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल नहीं है. करेक्ट? सो दीज टू थिंग्स आर इनफ फॉर अस, देयरफॉर इट इज ए polynomial in one variable. Correct? It is a polynomial in one variable. Correct? तो दिस, ये बहुत आसान सा था. करेक्ट? तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग हियर. इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, काफी इजी है. ठीक है? ऐसे हम लोग और भी 4-5 एग्जाम्पल जैसे आगे आगे जाते जाते हम लोग करेंगे. करेक्ट? सो वन क्वेश्चन तो वी हैव ऑलरेडी डन, वेयर we find out the, I gave you some couple of questions before, वो हमने already कर लिया understanding the terms. ठीक है? अच्छा, let us see कि polynomial में we have, let us understand the concept of mononomial, binomial, एंड ट्राइनोमियल. ये क्या ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं मेरे ख्याल से. ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव
किसने किसने बचपन में साइकिल चलाई है ना? फिर सर्कस में साइकिल देखिए, आपने देखा सर्कस में साइकिल जो होती है ना उसमें एक ही पहिया होता है, राइट? एक ही सीट होती है ऊपर और एक ही पहिया होता है, उसी पे बैठ के वो जो जोकर या कुछ भी होता है वो चलाता है, करेक्ट? देन अभी आप लोग बहुत बड़े हो गए हो तो अभी आपके पास साइकिल है, करेक्ट? उसमें कितने टायर्स है साइकिल में? कैसे ड्रॉ करते हैं ये? हमेशा मैं अपने क्लास में, मुझे बहुत मजा आता है ड्रॉ करने में। तो वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज माय ड्राइंग स्किल्स, करेक्ट? मैं हमेशा बताती हूँ सबको। तो यहाँ पे आपने कभी कभी ये सोचा है कि हमने अभी, जैसे हम छोटे थे तो हम कैसी साइकिल चलाते थे, या अभी बड़े हो गए हैं तो कैसी साइकिल चलाते हैं, या तो ऐसे सब। एंड देन वी हैव, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे पास और एक साइकिल हुआ करती थी, वो कैसी थी? यहाँ से लेके उसका हैंडल हुआ करता था और यहाँ से लेके यहाँ पे एक पहिया आता था, एंड देन यू हैव टू, ये यहाँ से जाके यहाँ पे एक पहिया आता, करेक्ट? एंड देन यहाँ पे यू हैव टू हैव अ सीट और यहाँ पे एक हैंडल, करेक्ट? बस ये तीन है। ये क्या है? ये मोनोनोमियल, एक ही टायर है। ये बाइनोमियल, दो टायर है ना? और ये ट्राइनोमियल, तीन टायर है, करेक्ट? तो मोनोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स और ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। ये लेसन में हम थ्री टर्म से ज्यादा जाते नहीं है, बस इतना ही। बाय, मोनो, मो, बाय, ट्राई, करेक्ट? ये हमारे तीन टर्म्स है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अभी हम लोग कुछ कुछ टर्म्स लिखेंगे, आपको पता चलेगा। मोनोनोमियल में जैसे कि आएगा, फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट डाउन के 2x, इफ आई राइट डाउन 2x, 2x क्या है? मोनोनोमियल। फिर इफ आई राइट डाउन 2x - 3, तो क्या है? बाइनोमियल। अदरवाइज ऐसे लिखेंगे कि 15x प्लस 25x² + 2, ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। सिंपल, करेक्ट? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स है और भी लिखने हैं आप लोग, यू कैन ऐड अ कपल ऑफ मोर टर्म्स इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि कलर थोड़ा चेंज करेंगे, दिखता नहीं है ये कलर ना। ओके, तो इफ थ्री, क्या टर्म्स लेंगे हम लोग? सपोज 3x + 9 कहाँ पे आएगा? 3x + 9 क्या है? बाइनोमियल, करेक्ट? फिर ट्राइनोमियल, अगर ट्राइनोमियल लिखना है तो क्या लिखेंगे? सपोज वी कैन से 2x² + 3x + 4, करेक्ट? ऑल दीज आर मोनोनोमियल्स। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 28y। दीज आर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, करेक्ट? पॉलिनोमियल जो होता है ना, कोई भी पॉलिनोमियल, हम लोग एक्चुअली एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स ऐड कर सकते हैं, आपको पता है? मतलब कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल आपको पॉलिनोमियल, आइडियली एक पॉलिनोमियल में ना, पॉलिनोमियल, ये आपको जो जैसे मैं अभी लिखने वाली हूँ, तो आपको देख के ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये मुझे याद करना है ना, ये आपको याद करना ही नहीं है, करेक्ट? आपको सिर्फ ये समझना है कि एक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है। पहले तो एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस, हाउ टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p(x), या वी कैन से इट इज g(x), और वी कैन से q(x), ऐसे कुछ भी x के फॉर्म में, मतलब p(y) होगा तो इक्वेशन में, मतलब ये जो इक्वेशन हमने अभी लिया है x वाला, तो p(x) क्या फंक्शन है? जो अंदर के सारा वेरिएबल x होगा। इफ आई से p(y) तो वेरिएबल y होगा। इफ आई से g(t) तो वेरिएबल t होगा। तो अंदर जो वेरिएबल है उसके हिसाब से ये फंक्शन चेंज होता है। तो जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें एक्चुअली हम वी आर गोइंग टू लर्न ओनली थ्री टर्म्स, बट इन अ पॉलिनोमियल आइडियली स्पीकिंग देयर आर मेनी टर्म्स। एक पॉलिनोमियल में बहुत टर्म्स आ सकते हैं। कौन से टर्म्स होते हैं? जैसे कि अभी जो मैं लिख रही हूँ वो पूछेगा नहीं कोई आपको, बट यू शुड नो दिस, करेक्ट? एन टर्म्स आ सकते हैं पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, अ पॉलिनोमियल कैन बी, हाईएस्ट डिग्री से लिखते हैं हमेशा, सो a n x⁴n, करेक्ट?
फिर an मतलब कोई भी नंबर, an is any number, correct? You can write down, so we can write down an minus 1 x to the power n minus 1. ऐसे करते 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 we can come to a point where you will reach down a1 x plus ax to the power 0, a to the power 1. ऐसे करते 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 मतलब basically every polynomial starts with the highest power and it ends with the lowest power. ऐसे, इससे डर मत जाना, ये जस्ट बताने के लिए, कोई पूछेगा नहीं आपको, ये वाले सम्स कभी एग्जाम में नहीं आते ऐसे वाले, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज ए पॉलिनोमियल, करेक्ट? तो आई होप फ्यू थिंग्स, अभी थोड़ा थोड़ा एक 20% थोड़ा कुछ पता चल रहा है, करेक्ट? एक नया कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल में, ओके, वी विल सी व्हाट दैट कॉन्सेप्ट इज. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना. छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, दो चीजें हैं, डिग्री एक है, कोएफिशिएंट एक है, करेक्ट? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable, जैसे कि if I say 3x to the power 4 plus 4x cube minus 2x plus 3, ये पॉलिनोमियल है. तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? x x x, ये वेरिएबल है. अच्छा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, करेक्ट? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज द डिग्री टेल्स यू हाउ मेनी वैल्यूज x will have, how many values x will have. So when you try to solve this particular polynomial, you will get x is equal to 1, x is equal to 2, ऐसे कुछ तो अलग अलग अगर आप जब सॉल्व करोगे तो, करेक्ट? तो x की 4 वैल्यूज आएगी, x की एक वैल्यू आएगी, x की दूसरी वैल्यू आएगी, x की और एक वैल्यू आएगी और x की तीसरी वैल्यू आएगी, करेक्ट? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिर यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके? तो जैसे कि जितना पावर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इफ यू टेक वन एग्जाम्पल यहाँ पे, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ये है तो आप जब भी फैक्टराइजेशन सीखोगे, मैं करके अभी बता रही हूँ आपको, लेकिन ये जब आप सीखोगे फैक्टराइजेशन, तो सपोज इफ से कि इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? इफ से दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन हमको क्या बताती है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल टेल्स अस हाउ मेनी वैल्यूज x विल हैव. जैसे कि अगर हम लोग, आप लोग जैसे आगे सीखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस 2. ये अभी मैं कर रही हूँ, शायद किसी बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके हम लोग ये सीखने वाले, करेक्ट? तो यहाँ पे जाके यू विल कम टू नो कि x की वैल्यू इधर -2 होती है या x की वैल्यू -3 होती है. अच्छा, ये हमको अगर सॉल्व भी करने को नहीं आता, सपोज आपको ये नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल का डिग्री देखकर, ये 2 को देखकर आपको यू विल कम टू नो दैट x विल हैव 2 वैल्यूज, करेक्ट? x हैज 2 वैल्यूज. Merely by looking at the degree of that equation, you will come to know how many values can be, how many values will x have, or how many values will the variable have in that particular polynomial, correct? If I write down y to the power 10 minus 1, that means yes, of course, y you will have 10 values. You will get 10 different values for y, even if this equation looks small. How does it come? That and all we will understand, but to understand basically y will have 10 values. This is the importance of the degree part, correct? Abhi let us understand what is the coefficient part. डिग्री पार्ट तो हो गया, हमको समझ में आ गया. अभी कोएफिशिएंट का देख लेते कैसा है. तो इन द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट क्या है? इसमें ये कोएफिशिएंट है, हमने पहले भी देखा था, है ना?
ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है हर एक चीज का, इसका ये कोएफिशिएंट है, इसका ये कोएफिशिएंट है, करेक्ट। These are called coefficient. Coefficient are numerical values which are attached with the variable, correct? Numerical values which are attached to the variable. I hope you guys are understanding what I'm trying to say. ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज आप देखते हो और जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वेरिएबल, जब भी लाइक और अनलाइक टर्म्स आपने 8th में 7th में सीखे थे ना, तो आप क्या करते थे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो वो वेरिएबल को लेके तो यू डू इट, यू टेक द वेरिएबल एंड द न्यूमेरिकल कंपोनेंट एंड यू डू इट, करेक्ट, राइट। सो नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि डिग्री, डिग्री से लेकर हम अंडरस्टैंडिंग द डिग्री, we can also define the names of the polynomials. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री 1 हो, देखो यहाँ पर, ओके, सपोज लेट अस अंडरस्टैंड द, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, या फिर एक काम करते, वी विल जस्ट राइट, यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल, ये टेबल आप लोग बना लेना, ओके, पॉलिनोमियल एंड देन वी कैन हैव उसकी डिग्री, या पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, हर एक पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, तो पहले उसका नामकरण कर देते, पॉलिनोमियल, देन टाइप, देन डिग्री एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वैल्यूज वेरिएबल विल होल्ड। चलो, okay, so for example if I take x square, sorry, if I take 3x plus 2, तो ये टाइप कौन सा हुआ, किसको याद है, ये लीनियर टाइप 1, दिस इज अ लीनियर, एक ही है ना, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो 1 अगर डिग्री है तो वेरिएबल क्या, कितने x के कितने वैल्यूज होंगे, हाउ मेनी वैल्यूज विल यू गेट फॉर द वेरिएबल दैट यू हैव इन्वॉल्वड देयर, ओनली 1। इफ आई टेक 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये कौन सा इक्वेशन है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी है 2, x के कितने वैल्यूज आएंगे 2। सी योर आई एम राइटिंग x, लेकिन ए बी सी, नॉट ए, सॉरी, यहाँ पे y z कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सो इफ वी टेक से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इफ आई टेक दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज अ क्यूबिक, इसकी डिग्री कितनी है 3, x के कितने वैल्यूज निकलेंगी 3, करेक्ट। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, ये हमारा दिस इज द वे वी कैन आइडेंटिफाई। अब इसके बाद हम जो भी लिखेंगे, इसे x टू द पावर 4, 3x टू द स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, सॉरी क्यूब कर देते हैं, इसे स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर ये करेंगे तो इसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक, करेक्ट, इसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ तक हम जाएंगे नहीं, इसका आगे हमारे ज्यादा है नहीं, तो डिग्री 4 है, 4 इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी 4, करेक्ट, ओके। तो अभी विल डू वन एग्जाम्पल हियर और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। सो फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, सपोज एक एग्जाम्पल है हमारे पास के x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 5, तो डिग्री कितनी हुई, देयरफॉर सिंपली, बहुत आसान है, यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 5, करेक्ट, ओके। so let's now take one more sum there, 5x cube plus 4x square plus
7x, इसकी डिग्री कितनी हो गई? व्हाट इज द डिग्री इक्वल टू? डिग्री इज इक्वल टू 3. Correct? So this is a very simple thing. I think you guys are itna sara, when you do this simple sums, so I think you are already warming up for the coming exercises. ठीक है, if I write what type of equation this is, suppose दूसरा example ले लेते हैं. If I write down x square plus x, so can you all tell me what kind of equation this is or what kind of polynomial this is? This is highest power क्या है इसकी? देखो डिग्री क्या है बेसिकली? डिग्री इज इक्वल टू 2. Therefore this is what? This is a quadratic. This is what? This is a quadratic equation या quadratic polynomial. Correct? This is a quadratic polynomial. I hope you guys are getting it right. एकदम आसान है ये चैप्टर. आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो तो इट विल बी वेरी इजी. करेक्ट? अच्छा, एक सवाल पूछना है मुझे. 1 सेकंड. सो लेट्स से वी इफ इट इज √2 is a polynomial of degree what? Is a polynomial of degree what? क्या होगी इसकी डिग्री? कौन बताएगा? ओके, √2 is a polynomial degree what? आपको याद है मैंने बोला था कि यहाँ पे x है तो ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग √2 के बाजू में x to the power 0. तो √2 is a polynomial of degree 0. Correct? I hope you guys are getting it. Okay. So this is, let us take one more example. Okay. 1 second. तो यहाँ पर I think by now I think you guys have understood this. I think you guys are prepared for some part of this lesson. कुछ अभी directly कुछ sums करते हैं हम. Okay, which will help you to understand the chapter much better. Okay. Okay. So let's start doing with some sums which will help you to understand the concepts a little more better. Okay. So let's consider a polynomial. Say example लेते हैं. Let us consider a polynomial. Consider that p of x is equal to say 5x cube minus 2 okay. So यहाँ पे we have an equation, a polynomial with us where p of x is equal to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. Understand, when you have an x here, you have an x as a variable. That means if we change the x here in the p bracket, we will also have to change the x in all the equation in the polynomial that we have. That means if this we can say in the mathematical term, we can say therefore, if p of x is equal to this much, then p of 1 is equal to 5 into 1 cube minus 2 into 1 square plus 3 into 1 minus 2. So p of 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यही पॉलिनोमियल हमने लिया है, उसका वैल्यू कितना आएगा? 5 minus 2 plus 3 minus 2. But you have to use BODMAS. You first take the positive terms, that is going to give you 8, and then you take the negative terms, which is going to give you minus 4. So p of 1 is equal to 4. So what we will say, that the value of the polynomial, so what we will say, इसको बोलने का क्या तरीका है? Therefore, value of the polynomial, at x equal to 1 is 4. Getting it? X equal to 1, क्योंकि जब x था तो ये था, x के जगह पे we have put 1, so that means we have taken at x equal to
1, करेक्ट। ऐसे सेम यू कैन टेक द सेम पॉलिनोमियल और आप और एक वैल्यू इसके निकाल सकते हो, करेक्ट। सो लेट अस फाइंड आउट सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू एट p ऑफ -1। देखो क्या आएगी, इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट -1 द होल क्यूब -2 इंटू ब्रैकेट -1 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट -1 -2। अब इफ यू ओपन द ब्रैकेट, देखो ये माइनस है, एंड टू द पावर ऑफ ऑड दैट विल गिव एन ऑड नंबर ओनली, सो इट विल बी -1 इंटू 5, करेक्ट। तो ये एक्चुअली दिस विल बी 5 इंटू -1, क्योंकि देखो -1 ये जाके आंसर -1 ही आता है आपका, तो दिस गोइंग टू बी -1 माइनस, सी इफ यू हैव, बट तो ये ऑड नंबर है ना, ऑड पावर, और अगर ये इवन पावर है तो +1 आएगा, तो ये इवन पावर है, 2 इज एन इवन पावर, सो 2 इंटू +1 प्लस 3 इंटू -1 का तो कितना आएगा, आप उसको सीधा -3 लिख सकते हो, और ये कितना आएगा -2, दिस विल बी -5 -2 -3 -2, सारे माइनस है तो आप सारे साथ में ले लो, इट विल बी -5 -3 8 एंड दिस विल बी -12, करेक्ट। तो व्हाट यू विल से therefore क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equal to -1 is -12, correct? I hope you guys are getting it, right? So therefore value of the polynomial at x equal to -1 is equal to -12, correct? नाउ आप लोग ढूंढो तो x इक्वल टू 0 का p ऑफ 0 कितना आएगा, ये p ऑफ -1 p ऑफ 1 हमने किया है, आप लोग देखो p ऑफ व्हाट विल बी p ऑफ 0 फॉर द सेम पॉलिनोमियल, करेक्ट। यही पॉलिनोमियल लेना है हमको, पॉलिनोमियल लिखना है, पहले तो लिख लेते कंफ्यूजन है, तो p ऑफ x क्या दिया है, इज इक्वल टू 5x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3x -2, करेक्ट। तो यहाँ पे p ऑफ 0 क्या आएगा, दिस विल बी 5 इंटू 0 क्यूब -2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2, ये सारे जीरोस निकल जाएंगे क्योंकि ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और -2 आंसर रहेगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2। क्या हुआ, वैल्यू एट p ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, करेक्ट। सो ऐसे अलग अलग वैल्यू डाल के आपको अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो यू नो वी विल डू लिटिल, ये तो आसान है ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट। सो लेट्स फिगर आउट नाउ नेक्स्ट क्या करना है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉली, मैं नीचे आई विल गिव यू सम पॉलिनोमियल्स और उसकी वैल्यूज आपको निकालनी, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द following polynomial at the indicated value of the variable, indicated मतलब जो बताई गई, करेक्ट, indicated value of the variable, करेक्ट। तो एक पहला सम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव p ऑफ x, तो p ऑफ x अगर हमको दिया है कि 5x स्क्वायर -3x plus 7, you have to find the value at x equal to 1, correct। इसका मतलब therefore what we have to do, therefore we have to find its value at p of 1, correct। x equal to 1 है ना, तो p of 1 ढूंढना है, तो क्या आएगा वापस 5 इंटू ब्रैकेट 1 स्क्वायर -3 इंटू ब्रैकेट 1
plus 7. That will be how much? P of 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 minus 3 plus 7. 5 plus 7 is equal to 12, or 12 minus 3 is equal to 9. P of 1 is equal to 9. Correct? तो क्या आ गई वैल्यू इसकी? 9. Therefore, we can say that value at x equal to 1 is 9. Correct? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. सपोज उसका ही बी पार्ट है. ओके, सपोज इट इज गिवन q of y is equal to 3y cube minus 4y plus root of 11 at y equal to 2. What will you do here? So y equal to 2, that means you have to find out, you have to replace y with 2 here. What will you do? 3 into bracket 2 raised to 3 minus 4 into 2 plus root of 11. So this will be 3 into bracket 2 cube, that is 8, minus 4 2s are, that is also 8, plus root of 11. This is equal to 8 3s are 24 minus 8 plus root of 11. लेना तो पॉजिटिव नंबर चाहिए एज पर बॉडमस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉजिटिव नंबर यहाँ पे हमें पता दिख रहा है कैसे. वी आर एबल टू सी कि पॉजिटिव नंबर दोनों भी एक में रूट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू हमको नहीं आएगी. करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू 24 minus 8. 24 minus 8 equal to 16. 16 plus root of 11. करेक्ट? तो ये बहुत आसान चीजें हैं. एट द वैल्यू जब हमको ढूंढना होता है. करेक्ट? दैट इज वेरी इजी. तो लाइक दिस यू कैन डू अ कपल ऑफ सम्स. ओके, इस पे आप यहाँ तक अगर आपको आता है, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस अंटिल हियर, यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज नंबर 2. ठीक है, कुछ सम्स वहां पे आप लोग करके देखो, आपको आ जाएंगे. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, विच इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. व्हाट डू यू मीन बाय अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जो वैल्यू डालकर द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल बिकम जीरो. करेक्ट? तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपको दिया है कि p of x is equal to x plus 2. Which value of 2 will make this entire thing zero? Obviously minus 2 ना. करेक्ट? सो आप देखो अगर यहाँ पे, सो इफ आई से p of, हम दो वैल्यू चेक करते हैं. p of 2 क्या आएगा? तो ये 2 plus 2, दिस विल बी 4. अच्छा, p of minus 2 क्या आएगा? p of minus 2 will be minus 2 plus 2, ये आएगा 0. So therefore minus 2 made this equation, made this polynomial a 0. Correct? So therefore we can say that minus 2 is the 0 of the polynomial. Correct? This is called as the 0 of the polynomial. Correct? Okay, now let us see one more example. And suppose we have, say, ये हमको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि वेरीफाई whether 2 and 0, whether 2 and 0 या फिर इस 0 को ऐसे लिखेंगे, उस 0 को ऐसे लिखेंगे. whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial, are the zero of the polynomial,
P of x is equal to, ये polynomial है, the polynomial given is equal to x square minus 2x. Correct? This is the polynomial given to us, right? So, कैसे करेंगे? So, given polynomial is what? Therefore, P of x is equal to x square minus 2x. पहले हमको ढूंढना है at x equal to 2. Correct? So, let's see. Therefore, P of 2 क्या आएगा? That will be 2 square minus 2 into 2. That will be 4 minus 4. This is equal to 0. So P of 2 तो 0 आया. Correct? अच्छा. For other we will check. Okay. P of 0. So now P of 0 कितना आएगा? That will be 0 square minus 2 into 0, which is equal to 0 minus 0, which is equal to 0. So therefore, can you see that P of 0 also we got a 0 and P of 2 also we got a 0. So therefore, what you will write down? Therefore, we can say that therefore x equal to 2 and x equal to 0 are the zeros of the polynomial. Are the zeros of the given polynomial. Correct? So I think ये इतना difficult नहीं है. I hope you understood. So this is the end of introduction of exercise, first exercise, which is 2.1 and 2.2. You guys should be able to do the sums in both the exercises. As far as the explanation is concerned, it is done here. You try to do these questions. If you do not understand, if you cannot do certain questions, you can let me know and put it in the comments. I will help you all out with the solution of the exercises. Okay. Thank you, everybody. Bye-bye. See you all soon and study well. I'll see you all in the next video. Bye-bye.